Hmm. So last lecture was very we had to close because the time had finished. So one or two slides were added. I think you must have seen it. So we'll go to the slideshow mode. Okay. So actually that day we could not discuss the types of semiconductor converters for AC to DC drives. So this is all kind of again revision, because AC to DC convert, there are only four types of converters: AC to DC converters, AC to AC converters. Okay. So AC to DC converters, AC to DC converters are called what? Just a minute. So what is happening here? So AC to DC converters are the rectifiers about which we discussed. So these are the rectifiers, converters. They are also called as phase controlled or line commutated converters. And these are used for DC motor speed control, and the details about these converters we have already studied in the previous class and available on the slides also. Then AC to AC converters are cycloconverters, or there are AC voltage controller, voltage regulators also. You can see like just a fan ka regulator hota hai. So something like that. They are AC to AC converters, and without changing the frequency, etc. Only the fixed AC voltage to variable AC. And in cycloconverter, you can change the magnitude as well as frequency. And naturally, because it is output is AC, so this is used for AC motor control, AC motor speed control. And cycloconverters, this is important, that they are used for slow speed AC drives only, very slow speed AC drives. And their speed range is also very low, because cycloconverters cannot control the speed around the base speed. They control very slow speed, like their limit is up to 40% of the base speed. So if there is 1,000 RPM drive, then the cycloconverters will be used for controlling speeds up to 400 RPM only. Okay. So not above 400, because after that, the output will have lots of harmonics. This is the disadvantage of cycloconverter, and that is why cycloconverters are used for very high power drives, but low speed. Similarly, DC to AC converters are called inverters, and you are very familiar with, there are mostly bridge inverters, PWM inverters, pulse width modulated inverters, etc. Used very widely used for AC motor speed control. And the PWM inverters, they reduce harmonics, and they are used for a wide range of speed control in V by F variable frequency drives, V by F drives. So when you want a speed above the base speed, then you change the frequency, because you cannot change the voltage. Okay, you cannot change the voltage becomes fixed. When you reduce the voltage and the frequency also, keeping the V by F ratio constant, then you get speed control below the base speed. So below the base speed, V by F is constant. If you have to reduce the speed, you reduce voltage as well as frequency. Above the base speed, voltage is fixed, but frequency is increased. So you get a high speed. So this is about the concept of above and below base speed in V by F drives. Then there are choppers. Choppers are also single quadrant, two quadrant, four quadrant choppers. And choppers are used for DC motor speed control. And choppers are very high frequency. They have a very high frequency operation. They have low ripple. So therefore the losses are also less. Now derating is less. What is derating? Are you familiar with derating? Because this term we use. Derating means if a motor is rated at 100 ampere, and at 100 ampere, the motor is supposed to produce the rated power output also. Okay. Now derating means instead of 100, if the motor,
when the motor is completely, I mean, motor is drawing 100 ampere, but the power output is not full, but let us say only 95%. If it is a 5 HP motor, so you have loaded the motor till 100 ampere, but the output is let us say 90% of 5 HP. That means fully loaded electrically, full current, full losses, everything, but the power is not full. So that means motor is derated. And this happens due to harmonics. Because due to harmonics, what happens is, though the current is 100 ampere, rated current, but the fundamental component is only 90%. 10% is harmonics. So torque produced, power produced is only 90%. Get this point? समझे? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. पॉइंट क्लियर. तो मोटर की क्या हो गई, डिरेट हो गई ना मोटर. अब इफ यू वांट द मोटर टू गिव फुल आउटपुट, तो आपको 100 एम्पियर से बढ़ाना पड़ेगा करंट, 110 एम्पियर करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल. तो अब वो 110 एम्पियर पे इट विल गिव यू 5 एचपी. सो व्हाट हैपेंस, अननेसेसरी 10% ओवरलोड. Okay, thermal overload, because there are harmonics. So harmonics increase the losses, or ripple also, and they derate the motor. Ripple word is used in DC, harmonics is used in DC, AC, but दोनों चीजें जो है वो सेम ही है. Choppers में और क्या property है? They are lightweight. The chopper control drives are lightweight. They are small in size. Their response is quick, and they have a regeneration capability, regenerative braking. Regenerative means they can return power back from the motor to the source. Means motor works in braking mode, motor works as a generator, and the speed of the motor is reduced, and the dynamic energy, that half omega m square, dynamic energy converted to electrical energy and returned back to the supply. And this is possible down to very low speeds in choppers. So this is a advantage of chopper. Then the other slide which I added is the characteristics of an ideal switching device. Because you see, all power semiconductor converters have power devices connected in various configurations. Then जिनको हम SCR बोलते हैं या कुछ बोलते हैं. So there are large number of these devices are basically क्या है? The devices, they are actually switches. They are switches, and they convert fixed AC or DC voltage to variable AC or DC voltage, as we saw on the previous slide. AC to DC, DC to DC, जो भी combinations हैं. So basically, who does it? The devices. Devices are connected in, let us say, bridge configuration or in any other configuration, and they work as basically power semiconductor switches या power semiconductor switching device हम उनको कहते हैं. So the SCR, IGBT, whatever, these are all basically switch only. So what should be the properties of an ideal switch? जो भी ideal switch में property होनी चाहिए, वही इन सभी devices में होनी चाहिए. Okay, all the semiconductor devices. And these are the properties which are listed here. That as an ideal switch, the semiconductor device should be able to, you should be able to design it for large voltage and current ratings. है ना, लिमिट है. अगर कोई जैसे मॉसफेट है, उसमें रेटिंग ज्यादा हाई नहीं हो सकती है, हो ही नहीं सकती उसके कंस्ट्रक्शन के कारण. इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ मॉसफेट, तो उसका ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाता है. मतलब जब वो ऑन होगा तो वोल्टेज जीरो होना चाहिए ना. ऑन स्विच इज लाइक अ शॉर्ट सर्किट, बट मॉसफेट में ये डिफिकल्टी होती है. दिस इज द डिसएडवांटेज. तो इसलिए लिमिटेड रेटिंग्स उसकी लिमिटेड होती हैं, जबकि एससीआर में बहुत हाई होती है. So you should be able to design a switch in large voltage and current ratings. This is the first property. Secondly, when the device is conducting, it is in on mode, conducting mode, then there should be zero voltage drop across the device, because it should behave like a short circuit. वो ऐसे होना चाहिए ना जैसे शॉर्ट हो गया बिल्कुल स्विच की जगह पे. It should be like that. Thirdly, zero leakage current. जब ब्लॉकिंग मोड में हो, जब डिवाइस ऑफ पोजीशन में है या ब्लॉकिंग मोड में है, उस समय इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट. इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट. एंड व्हेन इट इज ऑफ, व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट, देन द फुल वोल्टेज, पूरा जितना भी वोल्टेज उसके अक्रॉस है, वो पूरा वो विथस्टैंड करता है विदाउट ब्रेकडाउन. मतलब अगर उसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाएंगे उस टाइम पे, तो जो भी सर्किट का जो भी वहां वोल्टेज है, पूरा वोल्टेज आपको मिलेगा. जबकि जब वो कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज जीरो रहेगा उसके अक्रॉस. So, and voltage will be full when in blocking mode. Voltage across the SCR or the IGBT will be full, but
करंट विल बी 0। तो उल्टा उल्टा है, जब ये ऑन है तब करंट उसमें से फुल लोड करंट विल फ्लो। स्विच की अपनी कोई करंट नहीं होती, जो लोड में जितनी भी करंट होगी वो इसमें से फ्लो होगा, बट वोल्टेज विल बी 0। When it is off, then their leakage current should be 0, but voltage will be full voltage which appears across the switch. Then an ideal switch should have a high temperature withstand capability. तो उसकी जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज हैं, डोपिंग लेवल्स हैं, सो यू हैव टू मेक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा टेम्परेचर हाई हुआ तो डिवाइस खराब हो गई, तो इस तरह से फिर आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी, रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। ये रिलायबिलिटी से रिलेटेड टर्म है कि मतलब डिवाइस खराब पिछली बार कब खराब हुई थी और अब कब खराब हुई, तो उनके बीच का टाइम ज्यादा होना चाहिए। हाई मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, तो माना जाएगा कि डिवाइस इज रिलायबल। और अलग अलग कंपनियों की डिवाइसेस को आप इसकी रेटिंग के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि द डिवाइस विच हैज गॉट ए हाई मीन टाइम, ये स्टैटिस्टिकली डिसाइड होता है MTBF। तो जो कम फेलियर के चांसेस रहते हैं वो डिवाइस कॉस्टली भी ज्यादा होगी, बट आपको बेटर पड़ेगा क्योंकि बार बार आके वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो बार बार खराब होने से सर्विस कंडीशंस गेट hampered, there is loss in production, frequently you have to repair and all that. Number 6 is instant on and off. तो इनका जो टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम है वो आइडियली 0 होना चाहिए। मीन्स द मोमेंट आपने उसको ट्रिगर करना चाहा वो इमीडिएटली ऑन हो जाए। और आप देखते भी हैं जो वेव फॉर्म अपन बनाते हैं उसमें हमने अगर ओमेगा टी अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे ट्रिगर किया तो हम ऐसा शो करते हैं कि इमीडिएटली द वोल्टेज बिकम्स इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ Vm sin ओमेगा टी। तो अपन ऐसा मान के चलते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। आपने पढ़ा है कि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम होता है, तो डिवाइसेस का टर्न ऑन टर्न ऑफ टाइम जिनका ज्यादा है उनको अपन बोलते हैं दे आर फास्ट स्विचेस, सॉरी स्लो स्विचेस, एंड दोज डिवाइसेस हु टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ फास्ट वी कॉल देम एज फास्ट स्विचेस। फास्ट स्विचेस का ये फायदा है कि एक ही साइकिल में एसी की उनको कई बार जल्दी जल्दी ऑन ऑफ किया जा सकता है क्योंकि वो फास्ट ऑन ऑफ होते हैं। और जो स्लोली ऑन होंगे, स्लोली ऑफ होंगे, स्लोली ऑन होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर साइकिल के दरमियान उनका ऑन ऑफ कम हो पाएगा। अब इससे फायदा क्या है? इफ यू आर एबल टू फ्रीक्वेंटली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ अ डिवाइस, देन यू कैन गेट ए आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म which is ideal, near ideal DC or near ideal AC. If the device has slow turn on turn off time, then the waveform will be more deviated or the waveform will have more harmonics. So ideally you should have very less on off time. Ideally though it should be 0 and practically it should be as low as possible. तीसरी स्लाइड जो मैंने इसमें ऐड करी है वो है इसके क्लासिफिकेशन पे। एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट ये मतलब यू मस्ट हैव स्टडीड इन द प्रीवियस कोर्सेज इन एनी, है ना, आपको पता है ना ये सब। बट द ओनली थिंग इज कि एक जगह इसके बिना कंटिन्यूटी नहीं आती है। सो दिस स्लाइड आई हैव एडेड एंड यू कैन इन डिटेल यू कैन स्टडी। सो पावर डिवाइसेस जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दे आर कंट्रोलेबल स्विचेस, ओके। Hence, like a switch, they behave as open circuit when they are off and as short circuit when they are on. और ऑन ऑफ कैसे होते हैं? टर्निंग ऑन मेथड, टर्निंग ऑफ मेथड सबकी होती है। तो यू ट्रिगर और यू टर्न ऑफ, तो उससे वो ऑन या ऑफ होते हैं, ओके। सो this is about the switches. Now the devices can be turned on by control signal or by pulses or by train of pulses. The device can be turned off by natural commutation या forced commutation, उसके अलग अलग सर्किट्स होते हैं, ठीक है। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर क्लासिफाइड एज, इनका अगर एक तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे टाइप्स पे, तो वन काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन कैन बी कि पावर, एक होता है पावर डायोड्स। इनको पावर इसलिए बोलते हैं कि जो नॉर्मल डायोड होता है उसकी रेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो डायोड होता है उसकी रेटिंग बहुत कम होती है, पर पावर डायोड जो है वो हाई पावर एप्लीकेशंस में, मोटर वगैरह तो मतलब छोटी रेटिंग की भी होती है, बट नॉर्मली इंडस्ट्रीज में तो बड़ी रेटिंग की मोटर्स होती हैं। सो पावर डायोड मींस अ डायोड व्हिच हैज गॉट अ हाई पावर विथस्टैंड कैपेबिलिटी। उसकी करंट और वोल्टेज रेटिंग्स ज्यादा हैं तो उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। SCR तो है ही। उसके बाद पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है उसको पावर BJT बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब BJT। फिर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर तो IGBT।
और पावर मॉसफेट। तो ये 5 डिवाइसेस हैं, एक तरह का क्लासिफिकेशन है। जैसे जो डायोड्स होते हैं वो पीएन जंक्शन होता है तो 2 लेयर होता है, एससीआर पीएन पीएन होता है ना, 4 लेयर्स होते हैं। तो वो बहुत डिटेल में नहीं डाला है, बट यू कैन जस्ट रिवाइज अ लिटिल कि इन सब में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है, वो तो थोड़ा सा इधर मैंने आपको पहले बता दिया था कि SCRs आर हाई पावर डिवाइसेस, है ना, IGBTs and transistors are medium power devices and power MOSFETs are low power but high frequency devices। और ये SCR बिल्कुल उल्टा, हाई पावर बट लो फ्रीक्वेंसी। इन सब में इनकी फ्रीक्वेंसी या टर्न ऑन ये सबसे स्लो होते हैं ऑन ऑफ में। SCR GTO, पूरी SCR फैमिली, GTO भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। सो दे हैव गॉट हाई, मतलब जैसे कि एक चीज पाते हो आप तो दूसरी सेक्रीफाइस हो जाती है। इफ यू गेट हाई पावर रेटिंग you have low turn on and I mean you have slow speed, so high turn on turn off time, whereas MOSFET cannot be designed in high ratings, high voltage current ratings, high power ratings। even the power MOSFET cannot be designed as a very high power device। इसीलिए इसको अगर आप HVDC में या कोई बड़ी बड़ी ड्राइव के कंट्रोल में यूज करना चाहोगे, हाई रेटिंग ड्राइव के, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू, बट इट इज अ फास्ट स्विच। तो पावर मॉसफेट रहेगा तो आपके हार्मोनिक्स कम रहेंगे ऑलवेज, ठीक है। So power devices can be classified on the base of operating characteristic also। एक तरह का क्लासिफिकेशन ये हो गया, दूसरी तरीका का ये है on the basis of operating characteristics। तो इसमें क्या है, पावर डायोड। What is a power diode? It is a uncontrolled turn on and uncontrolled turn off। Power diode is a uncontrolled switch। उसमें ना तो टर्न ऑन पे आपका कंट्रोल है ना टर्न ऑफ पे। क्योंकि जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा ये ऑन हो जाएगा, जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा ये ऑफ हो जाएगा। यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। नाउ SCR, in SCR you have controlled turn on, okay, and uncontrolled turn off। क्योंकि SCR को ऑन करते वक्त तो आपका कंट्रोल है ना, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे SCR ऑन नहीं होता है, डायोड ऑन हो जाता है जैसे ही फॉरवर्ड बायस हुआ। SCR के लिए क्या है, जब तक आप पल्स नहीं, मतलब फॉरवर्ड बायस तो होना ही चाहिए उसको, बट देन the condition is that when it is forward biased, if you apply a gate pulse then it will trigger, so means controlled turn on। but uncontrolled turn off, तो टर्न ऑफ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। या तो आप ये फर्स्ट कम्यूटेशन सर्किट लगाइए, ओके, और या फिर आप डिपेंड करिए कि जब नेचुरल जीरो आएगा। अगर आप सोचेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 30 पे मैं SCR को ऑन कर दूं और अल्फा इज इक्वल टू 60 पे उसको ऑफ कर दूं, तो वो आप कर सकते हैं, बट कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा, नेचुरली नहीं कर सकते। इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट हैज गॉट कंट्रोल टर्न ऑन, अनकंट्रोल्ड टर्न ऑन, ठीक है। देन देयर इज कंट्रोल्ड टर्न ऑन एंड कंट्रोल्ड टर्न ऑफ, दोनों ही इसमें कंट्रोल्ड हैं। दीज आर ऑल सेल्फ कम्यूटेटेड डिवाइसेस। जिस सिग्नल से आप टर्न ऑन करते हैं वो सिग्नल हटा लीजिए तो ऑफ हो जाता है डिवाइस। मीन सेम सिग्नल से ऑन होता है, सेम सिग्नल से ऑफ होता है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ कम्यूटेटिंग डिवाइसेस। इनमें फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट की जरूरत नहीं होती, ना नेचुरल कम्यूटेशन की जरूरत होती है। आपने 30 डिग्री पे पल्स दी तो ये ऑन हो गया, आपने उसके बाद 40 डिग्री पे ऑफ कर दिया तो ये ऑफ हो गया, आपने 50 डिग्री पे फिर दे दिया तो ये फिर ऑन हो गया, 60 डिग्री पे फिर आपने इसको हटा दी वो पल्स तो ऑफ हो गया। तो इस तरीके से BJT, MOSFET, IGBT और GTO भी, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ SCR, इनको सबको यू कैन जस्ट कंट्रोल देयर ऑन देयर ऑफ बोथ, ओके। फिर पावर डायोड डिवाइस which has got a bi-directional current capability, जिसमें बाय डायरेक्शनल है, जो दोनों डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, वो कौन है, वो है ट्राइक, ओके। सो ये इतना था, फिर एक दो स्लाइड्स और आगे भी जोड़ी थी, बट दैट आई विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। पहले अभी हम क्विज, क्योंकि आप लोग का कल यू विल बी हैविंग योर क्विज, सो आई थिंक आई शुड फर्स्ट गो टू दैट, सो दैट मैं आपका क्विज का पार्ट पहले करती हूँ। बाकी क्लास मंडे को है ही, तो बची हुई चीजें और जो जो बारीक चीजें हैं या जो चीजें रह गई हैं तो वो, लेकिन आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एंड छोटी छोटी चीजें अपने नोट्स जैसे कुछ बना लीजिएगा, सो दैट आपको अच्छा, आपको हेल्प रहेगा उससे, ठीक है। सो नाउ आई विल स्टॉप दिस शेयर एंड आई विल
शेयर द क्विज टू यू सो दैट आप लोगों को क्विज का अदरवाइज टाइम कम रह जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। तो जो पहली आपकी क्विज हुई थी उसके आंसर्स एक बार शेयर करते हैं, और जो दूसरी होने वाली है वो भी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो पहला था व्हेन एन AC to DC कन्वर्टर इज सप्लाइंग अ मोटर एट लो स्पीड, देन द डिले एंगल ऑफ द कन्वर्टर एंड द पावर फैक्टर ऑन द सोर्स साइड विल बी। तो देखिए, आप मोटर को लो स्पीड पे चला रहे हैं, AC DC कन्वर्टर। लो स्पीड मतलब लो वोल्टेज। लो वोल्टेज कब होगा? जब फायरिंग एंगल ज्यादा होगा, है ना? तो इसीलिए डिले एंगल लार्ज, क्योंकि जब डिले एंगल लार्ज है तो AC वेव का बहुत छोटा सा टुकड़ा मोटर को मिलेगा, है ना? अगर फायरिंग एंगल बहुत कम है तो पूरा की पूरा AC वोल्टेज आउटपुट में जा रहा है मोटर के लिए। सो if the motor is at low speed means it is at low voltage. Low voltage means large delay angle. अब अपन बात करते हैं कि the power factor on the source side will be. अब पावर फैक्टर सोर्स साइड पे मतलब AC साइड पे आपका डिले एंगल बहुत लार्ज है, तो आपका मान लीजिए डिले एंगल 60 है या 70 है, तो एंगल बिटवीन पावर फैक्टर क्या होता है? एंगल ऑफ लैग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जितना डिले एंगल ज्यादा है उतना लैग है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? अल्फा जितना लार्ज होगा पावर फैक्टर उतना ही आपका पुअर होगा, लो होगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना ये? नेक्स्ट पॉइंट, द कन्वर्टर कंट्रोल्ड डिवाइस ड्राइव्स degrade the power quality because due to the switched operation of power devices the converter output deviates from ideal DC और AC। तो ये तो ट्रू है, हमें मालूम ही है, क्योंकि जो भी डिवाइस होती है ना वो AC में से काट काट के DC बनाती है, या AC में से काट काट के वेरिएबल AC बनाती है, या DC को काट काट के वेरिएबल DC बनाती है। तो नेचुरली जो फिक्स्ड जो DC था वो आइडियल DC था, या फिक्स्ड AC आइडियल था। जब आपने स्विच को ऑन किया ऑफ किया, ऑन किया ऑफ किया, तो आपको एक कटा पिटा हुआ कुछ आउटपुट मिला। सो नेचुरली इट विल नॉट बी एन आइडियल शेप। That is why there will be harmonics, there will be ripple. अगर output AC है तो we will say there are harmonics. If output is DC, then we will say there is ripple. Okay, तो ये true है। Then when controlling speed of a separately excited DC motor using the armature voltage control, तो आपको पता है कि जब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मोड में ड्राइव होती है तब वो बिलो बेस स्पीड वर्क करती है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है टॉर्क उसका जब कांस्टेंट होता है और वो टॉर्क भी कांस्टेंट होता है, इट इज अ कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ठीक है, और इस मोड में जब आर्मेचर कंट्रोल मोड में है तो स्पीड को रिड्यूस ही कर सकते हैं, क्या स्पीड बढ़ा सकते हैं क्या? क्योंकि वोल्टेज, जब वोल्टेज रेटेड है तब रेटेड स्पीड मिलेगी। अब वोल्टेज कंट्रोल में वोल्टेज घटाने का ही प्रोविजन है, वोल्टेज बढ़ाने का तो कभी आज तक सुना नहीं। कोई भी मोटर का या किसी भी डिवाइस को कभी भी हम हाई वोल्टेज नहीं देते हैं, तो स्पीड फिर इससे बढ़ेगी कैसे? स्पीड बढ़ाने के लिए हमेशा आपको फ्लक्स साइड में जाना पड़ेगा, फील्ड साइड में जाना पड़ेगा, और फील्ड को वीकन करना पड़ेगा। हमेशा अबव बेस स्पीड आपको तभी मिलेगा, speeds higher than the base speed, when field is weakened या flux is reduced because speed is inversely proportional to flux। तो ये दोनों ही बातें इसमें सही हैं, तो एक नंबर इसका था, एक नंबर इसका था। ठीक है, the harmonic content in the output voltage waveform of a square wave inverter is less than that of a PWM। तो ये तो गलत है। PWM तो बनाया ही जानबूझ के ऐसे जाता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ताकि वो AC के ज्यादा नजदीक हो। डिवाइसेस को ऑन ऑफ करते हैं 3 स्टेप में, 5 स्टेप में या 7 स्टेप में। जितनी ज्यादा आपके ऐसे ऐसे कट 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 होंगे टुकड़े, उतना ही हार्मोनिक्स उसमें कम होंगे। फिर पांचवा वाला है, और जबकि जो नॉर्मल जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है उसमें तो बहुत हार्मोनिक्स होते हैं, क्योंकि स्क्वायर वेव कंपेयर टू PWM आउटपुट के कौन सी वेव ज्यादा नजदीक है AC के? नेचुरली PWM का आउटपुट, PWM बनाते ही इसलिए है। अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन द सप्लाई द मोटर गेट्स डीरेटेड। अभी अभी मैं संजय डीरेटिंग के बारे में बता रही थी, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्मोनिक्स के कारण मोटर क्यों डीरेट होती है, कैसे डीरेट होती है। फिर the harmonic analysis of converter output waveform is done using Fourier analysis. Fourier analysis method is used for this. Okay, in the field control method of speed control of drives, सातवां वाला, जब फील्ड कंट्रोल करते हैं तो क्या अभी मैंने आपको बताया कि स्पीड इसमें हमेशा फील्ड कंट्रोल से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं।
स्पीड कंट्रोल से घटा कभी नहीं सकते, क्योंकि मोटर का अपना जितना फील्ड है उतना तो हमेशा ही रहेगा, और जब वो पूरा फील्ड है और जब पूरा वोल्टेज है तो रेटेड स्पीड पे चलता है। अब अगर आपको फील्ड कंट्रोल करना है तो यू व्हाट कैन यू डू, यू कैन इंसर्ट ए एडिशनल रेजिस्टेंस इन द फील्ड। तो फील्ड का रेजिस्टेंस भी, अब जैसे वोल्टेज को आप बढ़ा नहीं सकते थे, वैसे फील्ड के रेजिस्टेंस को आप कम नहीं कर सकते हैं। फील्ड वाइंडिंग को काट के आधा कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो उसको तो आप फील्ड में एडिशनली रेजिस्टेंस ऐड ही कर सकते हैं, और जब रेजिस्टेंस फील्ड में ऐड होगा तो फील्ड की करंट कम होगी, करंट कम होगी तो फील्ड का फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल दोनों डीकपल्ड स्पीड कंट्रोल है डीसी मोटर में, कि बिलो बेस स्पीड आर्मेचर कंट्रोल, अबव बेस स्पीड फील्ड कंट्रोल। Three-phase induction motor offers a wide range of speed control above and below base speed, as both modes above and below base speed are decoupled. तो गलती है, ये सिर्फ डीसी में ऐसा होता है। डीसी में अभी अभी आपने देखा कि आर्मेचर कंट्रोल जो है वो फील्ड को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता है, फील्ड बिल्कुल फिक्स्ड रहता है, फ्लक्स एकदम कांस्टेंट रहता है, इसलिए मोटर टॉर्क कांस्टेंट टॉर्क मोड में ऑपरेट करती है, और आप वोल्टेज को सिर्फ चेंज करते हैं। वोल्टेज को आप चेंज करते हैं तो पावर चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, पर टॉर्क फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और सिमिलरली जब आप अबव बेस स्पीड में जाते हैं तो आपका पावर जो है वो कम होता जाता है, सॉरी टॉर्क कम होता जाता है, पावर फिक्स्ड रहता है, वो जो झबले जैसा जो शेप अपन ने पढ़ा था। तो जब आप अबव बेस स्पीड में जाते हैं, बीच में बेस स्पीड होती है, उसके बाद में ऐसा कट जाता है, तो मतलब टॉर्क तो कम होता जाता है, पावर जो है वो सेम रहती है, कांस्टेंट पावर कैरेक्टरिस्टिक रहती है। संजय आ रहा है समझ में? दीक्षा, इज इट क्लियर? क्योंकि ये सभी एक ही Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट को एड्रेस, ऑल द क्वेश्चंस आर एड्रेसिंग द सेम कॉन्सेप्ट। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में जो स्ट्रेट लाइन होती है दैट इज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, और जो वाला शेप आता है दैट इज कांस्टेंट पावर ड्राइव ऑलवेज। तो जब भी अबव बेस स्पीड जाएंगे, स्पीड है ना वाई एक्सिस पे, तो आपका हमेशा पावर कांस्टेंट रहेगा, स्पीड बढ़ेगी लेकिन टॉर्क कम 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 होता जाएगा, ठीक है। और ये जो डीकपलिंग है दोनों के बीच की, बिलो बेस स्पीड एंड अबव बेस स्पीड, जो डीकपलिंग है ये डीसी मोटर में है, आर्मेचर उसमें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में नहीं है, क्योंकि क्या वहां पे क्या डबली एक्साइटेड है क्या? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में वोल्टेज चेंज करने से फ्लक्स भी चेंज होता है, डीसी मोटर में ऐसा नहीं होता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में चेंज द वोल्टेज, फ्लक्स इज नॉट अफेक्टेड, फ्लक्स का पूरा फील्ड का अलग सर्किट होता है। तो यही डीसी मोटर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल या बिलो बेस स्पीड एंड अबव बेस स्पीड जो मोड्स हैं दे आर कंप्लीटली डीकपल्ड, ओके। तो इसलिए ये वाली बात फॉल्स है। फिर पावर वेट रेशियो ऑफ डीसी मोटर इज लेस एज कंपेयर टू एसी मोटर। हाँ, तो ये डीसी मोटर ज्यादा भारी होती है, अगर एक 5 HP की मोटर होगी डीसी तो वो ज्यादा भारी होगी, है ना, तो इसलिए इसका जो रेशियो है डीसी का कम होगा, तो ये ट्रू है। द स्टेडी स्टेट स्पीड लिमिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ड्राइव इज मोर देन द ट्रांजिएंट स्टेट स्पीड लिमिट। तो ये तो गलत है ना, अपन ने वो स्पीड लिमिट सब जो है ये बना के देखा था ना, कि स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट में टॉर्क लिमिट जो है वो ज्यादा होती है ट्रांजिएंट की, पावर लिमिट भी ज्यादा होती है, पर स्पीड लिमिट फिक्स्ड होती है ना। वो डायग्राम याद करिए ऐसा वाला, मैंने आपको बताया था कि स्पीड जो है वो ट्रांजिएंट हो चाहे स्टेडी स्टेट हो, स्पीड लिमिट इज नॉट डिसाइडेड बाय द ऑपरेशन, इट इज डिसाइडेड बाय द, नॉट बाय द, क्योंकि स्पीड इज नॉट ए इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, स्पीड इज मैकेनिकल, तो इट इज डिसाइडेड बाय द मैकेनिकल बियरिंग एंड ऑल दैट लिमिटेशंस। तो इसलिए ये चीज जो है, जबकि करंट रेटिंग ज्यादा होगी ट्रांजिएंट में, वोल्टेज रेटिंग जो है, वोल्टेज तो अपन बढ़ाते ही नहीं है, करंट रेटिंग ज्यादा होगी क्योंकि यू कैन ओवरलोड द मोटर। सिमिलरली पावर रेटिंग भी नेचुरली, अगर करंट बढ़ेगा तो पावर, तो थोड़ी सी देर के लिए ट्रांजिएंट स्टेट में आप वो करंट बढ़ा सकते हैं, टॉर्क बढ़ा सकते हैं, पावर बढ़ा सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज द स्पीड। स्पीड विल रिमेन द, मतलब बेस स्पीड से तो ज्यादा रहेगा बट मैक्सिमम लिमिट। इस जगह पे जाके आपका कर्व ऐसा है, याद आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पे मुझे छोटा सा डायग्राम बना लेना चाहिए था, तो अभी इसमें तो बनेगा भी नहीं वो। तो एनीवे, तो आई थिंक ये क्लियर है ना आपको ये वाला पॉइंट, कि अगर इसकी जरूरत है तो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, नहीं समझ में आए तो बता दो, ठीक है? यस मैम। आया समझ में कि नहीं ये बात? यस मैम। आ गई ना? वो डायग्राम याद कर लो जो स्पीड एंड टॉर्क लिमिटेशंस का था बस। इंक्रीज इन स्पीड बियॉन्ड द बेस स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना, क्या करना है? फिर वही चीज है, देखो कि स्पीड अगर बेस स्पीड से ऊपर बढ़ानी है तो क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है हर जगह, है ना। तो आपको क्या करना है,
बेस स्पीड के ऊपर कौन सा मोड स्टार्ट होता है? कांस्टेंट पावर मोड, अभी अभी बताया, वो ये वाला पोर्शन है ना। जब स्पीड अबव बेस स्पीड होती है तो ये पोर्शन आता है, उसके पहले ऐसा रहता है, उसके बाद ये ऐसा हो जाता है ना। सो बाय ऑपरेटिंग एट कांस्टेंट पावर टॉर्क, सॉरी कांस्टेंट मैक्सिमम पावर, और ये भी सही है कि बाय डिक्रीजिंग द टॉर्क, क्योंकि टॉर्क कम होता है, पावर कांस्टेंट रहती है। दोनों ही सही है इसमें, जानबूझ के दोनों सही दिए हैं। और आपको मूडल में वो हिंट भी मिल जाता है कि एक से ज्यादा सही हो सकते हैं, लिख के आता है ना, उसमें आता है ना लिख के कि वन और Yes, मोर में ma'am. भी करेक्ट। ऐसे ध्यान से देखा है कि नहीं कभी? इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हिंट मिलती है कि इसमें कोई दो भी हो सकते हैं सही, और दो पे टिक भी कर सकते हैं आप। दूसरे क्वेश्चन में एक ही आंसर होता है, दो जगह टिक नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर पिकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑपरेशन विच कैनॉट बी डिजाइंड, पिक फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशन विच कैनॉट बी डिजाइंड डेजिग्नेटेड एज ट्रांजिएंट ऑपरेशन। इनमें से कौन सा ऑपरेशन ट्रांजिएंट ऑपरेशन नहीं है ना। तो देखिए स्टार्टिंग तो ट्रांजिएंट ही है, क्योंकि जीरो से स्पीड चेंज होती है। ब्रेकिंग भी ट्रांजिएंट है, स्पीड रिवर्सल ये भी ट्रांजिएंट है। सिर्फ अगर लोड को अपन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, सडन, अगर यहाँ ग्रेजुअल की जगह सडन लोड चेंज लिख दिया तो वो भी ट्रांजिएंट है, क्योंकि ड्राइव को एकदम से एक स्टेट से दूसरे में जाना है। पर अगर लोड धीरे धीरे बढ़ता है तो ड्राइव का, मोटर का टॉर्क भी धीरे धीरे लोड के साथ साथ बढ़ता रहता है। लोड भी धीरे धीरे बढ़ता है, मोटर भी धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये स्टेडी स्टेट से हो जाता है, इसके लिए ट्रांजिएंट नहीं लगता है। मोटर स्लाइटली स्मॉलर पावर रेटिंग कैन बी सिलेक्टेड फॉर सप्लाइंग अ हायर लोड। ये अपन लोगों ने पहले ये जब टेस्ट लिया था तब तो डिस्कस नहीं किया था, पर बाद में बहुत डिटेल में ये चीज डिस्कस की थी। इसका संबंध भी वही ट्रांजिएंट रेटिंग से है कि मोटर की ट्रांजिएंट टॉर्क रेटिंग जो डैश लाइन होती है वो हमेशा हाई होती है। और फ्लाईव्हील वगैरह लगा के भी अपन यही चीज कर सकते हैं कि अगर लोड कम टाइम के लिए है तो अपन लोग एक छोटी मोटर से हाई लोड के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रू है। ऑफ कोर्स हमेशा के लिए नहीं, वो जो हायर रेटिंग है दैट शुड बी ड्यूटी साइकिल ऐसा होना चाहिए कि द लोड हैज ए हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, तब ये चीज ट्रू है। फिर एक कन्वर्टर ऑफ स्लाइटली स्मॉलर रेटिंग। अब यही चीज मैंने आपको बताया था कि ड्राइव आप यूज कर सकते हैं मोटर, लेकिन कन्वर्टर को नहीं यूज कर सकते। कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप छोटे रेटिंग का नहीं यूज कर सकते। अगर आपका लोड 6 एचपी है तो आप 5 एचपी की मोटर लगा सकते हैं। 6 एचपी अगर हाईएस्ट लोड है, हाईएस्ट पावर रिक्वायरमेंट, हाईएस्ट टॉर्क इज या पावर रिक्वायरमेंट इज 6 एचपी, बट इट इज फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, वेरी वेरी छोटे छोटे इंटरवल में आता है वो, जैसे प्रेसिंग ऑपरेशन, तो उसमें आप स्मॉलर में रेट ले सकते हैं मोटर। लेकिन कन्वर्टर छोटा लगाया, अगर कन्वर्टर तो आपको 5 एचपी को अगर किलोवाट में कन्वर्ट करिए और करंट और वोल्टेज रेटिंग निकालिए, तो आपको कन्वर्टर तो बल्कि स्लाइटली स्मॉलर नहीं बल्कि हायर रेटिंग का लेना पड़ता है। आपने पढ़ा होगा कि डिवाइसेस का पीक इनवर्स वोल्टेज होता है जो अबाउट 1.5 से लेके 1.8 टाइम्स या कई बार और ज्यादा भी लेते हैं। कि अगर 400 वोल्ट पे डिवाइस ऑपरेट करनी है तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का एससीआर सिलेक्ट करेंगे आप। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हमेशा हायर रेटिंग के होते हैं, तो ये फॉल्स है। फॉर एप्लीकेशंस इन एयरक्राफ्ट द मोटर्स आर डिजाइन टू ऑपरेट एट 400 हर्ट्ज। तो ये आपको बताया ही था कि 400 हर्ट्ज पे क्या हो जाएगा, उसका उसका सब कुछ ही कम हो जाएगा, उसका वेट वॉल्यूम है ना, ये दोनों ही कम हो जाएंगे। वेट भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, ये दोनों इसमें सही है ना, वेट और वॉल्यूम। लेकिन लॉसेस तो कम नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी हाई होने से तो लॉस बढ़ता है ना, तो इसलिए ये लॉसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका वेट और वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी, आपने वी बाय एफ ड्राइव भी पढ़ी हुई है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से आपको उतना ही टॉर्क या उतना ही आपका फ्लक्स जो है जनरेट हो जाता है। हायर फ्रीक्वेंसी में लेस वोल्टेज करंट पर लेस साइजेस में, तो आपका मटेरियल भी कम लगता है, सब कुछ कम लगता है। नाउ फुल्ली कंट्रोल्ड एसी टू डीसी रेक्टिफायर फेड डीसी मोटर कैन हैव ऑपरेशन इन सिंगल क्वाड्रेंट, टू क्वाड्रेंट, ये आपको बाद में, अब तो आपको ये इजी लगता होगा बट यही उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। फुल्ली कंट्रोल्ड एसी टू डीसी मोटर जो होती है उसमें आप वोल्टेज को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर सकते हैं, और करंट तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगी, पर वोल्टेज को आप कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो है इट इज अ टू क्वाड्रेंट ड्राइव, ठीक है ना। इट इज अ टू क्वाड्रेंट ड्राइव, इट कैन रोटेट, इट कैन गिव यू टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन,
current direction remains fixed but voltage can be positive as well as negative. तो पॉजिटिव में रहेगी तो वो मोटरिंग मोड में रहेगी. वोल्टेज अगर नेगेटिव हो गया, इज अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90, अल्फा ग्रेटर देन 90, तो वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज विल बिकम नेगेटिव एंड द मोटर विल वर्क एज ए इन अ ब्रेकिंग मोड. ठीक है ना, तो वो ब्रेकिंग मोड में चला जाएगा और इस तरीके से वोल्टेज तो रिवर्स हो जाएगा उसका, क्योंकि वही नेगेटिव पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन कम हो जाएगा. तो एवरेज वोल्टेज बिकम्स नेगेटिव. तो आपने रीजनरेशन कहेंगे उसको हम लोग, और मोटर विल बी इन टू क्वाड्रेंट ऑपरेटिंग मोड. द स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ये पहले ही बता दिया कि फील्ड और आर्मेचर को अलग अलग सप्लाई नहीं होती है इंडक्शन मोटर में, इसीलिए उसका डीकपल्ड नहीं होता है. फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर एकदम डीकपल्ड नहीं है कि आराम से पहले आर्मेचर को कंट्रोल करते रहो बेस स्पीड तक, उसके बाद आर्मेचर को छोड़ दो, फिर धीरे 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 फील्ड को कंट्रोल करते रहो, और अबव बेस स्पीड में दोनों एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. जब आर्मेचर को कंट्रोल कर रहे हो फील्ड इज अनअफेक्टेड, तो आपका फ्लक्स, आपका टॉर्क फिक्स्ड है. जब फ्लक्स को आप चेंज कर रहे हैं तो टॉर्क आपका इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स टॉर्क से जुड़ा होता है, तो टॉर्क चेंज हो रहा है. बट आपका आर्मेचर का वोल्टेज, आर्मेचर की पावर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आर्मेचर अनअफेक्टेड है. तो ये जो डीकपलिंग है कि जब आप एक को कुछ, इसमें दीक्षा को डांटू संजय को कोई फर्क नहीं पड़े, और संजय को डांटू तो दीक्षा को कोई फर्क नहीं पड़े, भाड़ में जाए मुझे क्या करना है, तो ये डीकपल हो गया. लेकिन मान लीजिए आप दोनों को ऐसा लगे अरे अरे उसको डांट पड़ रही है, आपके ऊपर भी बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका मतलब एक के ऊपर कुछ एक्शन लेने से दूसरे को भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो फिर डीकपल्ड नहीं हुआ. ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में तो मोर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि क्या इसके तीन फेज के कारण है? नहीं, ये सिंगली एक्साइटेड है, ये इसका रीजन है नहीं, क्योंकि इसमें फील्ड और आर्मेचर अलग अलग नहीं है. इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मोटर. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज अ डबली एक्साइटेड मोटर. ना तो ये रीजन भी नहीं है, लार्ज मैग्नेटाइजिंग करंट से कोई मतलब ही नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग, ये सब तो दूसरी टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है ना. स्पीड कंट्रोल से इसका कोई मतलब नहीं. अब हम अगले पे आए तो डायनामिक टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ट्रांजिएंट स्टेट ओनली. ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ. अब तुम लोग बताओ, अपने माइक ऑन करो और बताओ. जो डायनामिक टॉर्क होता है जे डी ओमेगा एम बाई डी टी, तो ये स्टेडी स्टेट में होता है कि ट्रांजिएंट में होता है? बताओ बताओ, गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. मैम ट्रांजिएंट में ट्रांजिएंट होगा. वेरी गुड, तो इसका मतलब ये ट्रू हुआ. ट्रू, तो सही हो गया. फिर डायनामिक टॉर्क इज नेगेटिव ड्यूरिंग एक्सेलरेशन. डायनामिक टॉर्क होता क्या है? जे डी ओमेगा एम बाई डी टी. तो उस पे से सोच लो कि वो नेगेटिव ड्यूरिंग एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव ड्यूरिंग डिसेलरेशन. डिसेलरेशन मतलब जब स्पीड कम हो रही है. अब ये सही है कि गलत है? फॉल्स. मैम फॉल्स. क्योंकि डी ओमेगा एम बाई टी टी तो एक्सेलरेशन में पॉजिटिव होगा ना. वेरी गुड वेरी गुड. फॉर लोड्स नीडिंग फास्ट रिस्पॉन्स, जहां हम चाह रहे हैं कि लोड एकदम से जल्दी से स्पीड अप हो, जल्दी से टॉर्क डेवलप करे, तो इनर्शिया जो है मोटर और लोड सिस्टम, मतलब लोड तो जो है सो है ही, पर मोटर का इनर्शिया ऐसे में कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, कि कुछ इसका एक्सेलरेशन और सबसे क्या क्या समझ में आ रहा है आपको इससे? लो इनर्शिया होना चाहिए और एक्सेलरेशन हाई होना चाहिए. वेरी गुड वेरी गुड. कि उसको आपको एक्सेलरेशन, क्योंकि आपके हाथ में एक्सेलरेशन कंट्रोल भी रहता है, तो इसलिए अपने दोनों आंसर सही है. एट स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में द मोटर टॉर्क शुड बी इक्वल टू लोड टॉर्क. इजी है ये तो, है ना? मुझे लग रहा है बहुत इजी है. स्टडी यस मैम. होगा, कौन सा होगा? बताओ बताओ. पहला दूसरा तीसरा तीन आंसर है ना इसमें. मैम फर्स्ट. मोटर शुड बी इक्वल टू लोड टॉर्क. वेरी गुड. अब 22वां बताओ. व्हेन मोटर टॉर्क इज लेस देन, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएंगे तो कोई इस पे कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आपको ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, तो आप सब सॉल्व कर. क्वेश्चन, यही क्वेश्चन चार और तरीके से भी पूछा जा सकता है. व्हेन मोटर टॉर्क इज लेस देन द लोड टॉर्क, है ना, मोटर टॉर्क लोड टॉर्क से कम है, तो ऐसे में क्या होगा? मैम मोटर डीएसलरेट. वेरी गुड. क्योंकि डायनामिक टॉर्क वार्क से तो इसका कोई अभी मतलब ही नहीं है. मोटर टी इज लेस देन टी एल है ना, तो ये सब चीजों से तो कोई मतलब ही नहीं है. अगर मोटर का टॉर्क कम हो गया तो सबसे पहले क्या होगा? मतलब यार अदर लोड टॉर्क बढ़ गया तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी.
करेक्ट दीक्षा बिल्कुल। अब ये बताओ, एक्टिव लोड टॉर्क्स आर दोज, हमने एक्टिव और पैसिव पढ़े थे, तो एक्टिव लोड टॉर्क्स आर दोज लोड टॉर्क्स विच सपोर्ट एंड ड्राइव द मोटर, रिटेन देयर साइन व्हेन और इनमें अभी ना यहाँ पे आपको हिंट नहीं मिल रही है कि एक सही है कि दो सही है, पर मूडल में आपको मिल सकती है ना, मिलेगी आपको। तो एक्टिव लोड टॉर्क कौन से होते हैं, जैसे ग्रेविटी होता है ना, एक एग्जांपल है ना, वो क्या करता है, एक्टिव लोड टॉर्क ड्राइव्स द मोटर, मतलब जिस डायरेक्शन में मोटर चल रही है उसी दिशा में, जैसे ट्रेन ग्रेविटी के कारण स्लोप पे आती रहती है ना, तो उसमें क्या सही होगा, बताओ बताओ बताओ। मैम फर्स्ट। फर्स्ट, यस करेक्ट, सपोर्ट्स द मोटर या ड्राइव्स द मोटर, जो भी बोलेंगे, सपोर्ट्स एंड ड्राइव्स द मोटर। अब उसके साइन का कोई चक्कर है क्या, कोई और भी सही है क्या इसमें, ये तो गलत है, ये तो पैसिव लोड टॉर्क का होता है। अब रिटेन देयर साइन व्हेन डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड, मतलब मोटर की डायरेक्शन बदल गई तो क्या एक्टिव लोड टॉर्क का फिर भी वही डायरेक्शन रहता है या चेंज हो जाता है? मैम डायरेक्शन तो मैम सेम रहता है उसमें। तो फिर ये वाला भी सेम हो जाएगा ना, कि वो अपना यस मैम। रिटेन करते हैं साइन, जबकि पैसिव लोड टॉर्क में आपने देखा था ना, वो एक डायग्राम ऊपर लोड टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी, जैसे ही आपने उसकी स्पीड चेंज की, रिवर्सिबल मतलब की ना स्पीड चेंज, तो लोड टॉर्क भी नीचे आ गया ना। वो अपन लोगों ने एक जो स्पीड रिवर्सल के बारे में पढ़ा था ना उस डायग्राम में, यस मैम। है ना, कि वो एकदम से जो है वो जैसे स्पीड को आपको ऊपर से मतलब पॉजिटिव मान लीजिए 1000 आरपीएम से -1000 आरपीएम पे जाना है, और आपने स्टेप्स लिखे थे पूरे, तो उसमें क्या हो गया था, वो नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया और उसके बाद वो टीएल पे चला गया वो पॉइंट, और टीएल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो लोड टॉर्क, पैसिव लोड टॉर्क हमेशा अपना साइन चेंज करेगा, एक्टिव टॉर्क कभी चेंज नहीं करेगा, जैसे ग्रेविटी है उसका कभी भी साइन चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक्टिव लोड टॉर्क बोलने से हमेशा ग्रेविटी याद रखो। अब सिंगल फेज सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कन्वर्टर विद 2 SCR एंड 2 डायोड इज अ सिंगल क्वाड्रेंट है कि 2 क्वाड्रेंट है कि 4 क्वाड्रेंट है? सिंगल कॉर्ड। सिंगल, क्योंकि आपको पता है द मोमेंट डायोड आया तो वोल्टेज रिवर्स नहीं होगा, मतलब कन्वर्टर का वोल्टेज कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, अपन ने कल ही पढ़ा था ना, वो पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहा है। सिर्फ जैसे ही ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा तो फ्लाईव्हील डायोड करंट को तो घुमाता रहेगा लेकिन वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा। फ्लाईव्हील डायोड कंटिन्यूअस करंट मोड में रखेगा ड्राइव को, और वो भी कब तक रखेगा ये मैं आपको पिछली क्लास में बताऊंगी। अपन लोगों ने जो अभी एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने ये देखा था कि जब तक पाई प्लस अल्फा नहीं आ जाता है तब तक फ्लाईव्हील डायोड घूमता रहता है। पाई प्लस अल्फा पे दूसरे दो डिवाइस आ जाते हैं पिक्चर में, ठीक है ना, TH2 वगैरह, थायरिस्टर 2 और दूसरा डायोड 1, और तब तक वो फ्लाईव्हील डायोड जो है वो मतलब करंट को फ्लो करता रहता है क्योंकि इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी रहती है। लेकिन अगर इंडक्टर छोटा है तो जरूरी नहीं है कि फ्लाईव्हील डायोड पूरा अगले थायरिस्टर के ऑन होते तक, और अल्फा ज्यादा है, अल्फा मान लो ज्यादा है और इंडक्टर छोटा है, तो इंडक्टर में इतनी एनर्जी ही नहीं रहेगी कि वो पूरे अगले डिवाइस ऑन होते तक वो करंट को सर्कुलेट कराए, चाहे फ्लाईव्हील डायोड हो या ना हो। फ्लाईव्हील डायोड तो सिर्फ पाथ देता है, एक्चुअली कंटिन्यूअस करंट कैसे फ्लो होती है ड्राइव में से, बिकॉज ऑफ द इंडक्टर, स्टोर्ड एनर्जी इन द इंडक्टर। तो अगर इंडक्टर छोटा है ना तो पाई प्लस किसी भी डिग्री पे जाके, मान लीजिए अल्फा 30 था तो पाई प्लस 180 प्लस 30 उतने तक जाने की बजाय हो सकता है 180 प्लस 10 पे ही वो करंट जो है वो जीरो हो जाए। तो ये याद रखना, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। अब ये इफ द स्लिप ऑफ ए 6 पोल 50 हर्ट्ज, ये तो आप कैलकुलेट कर लोगे। सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर, ये सब इक्वेशन आपको कि मतलब आपको सिंक्रोनस स्पीड और ये सब निकालना आता है, स्लिप इतनी स्लिप पे मोटर कितने पे ऑपरेट करेगी, है ना, ये आपको आ जाएगा। सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद 4 SCR, ये क्या चीज है जिसमें चारों टू SCR क्वाड्रेंट। होता है, बताओ बताओ। टू क्वाड्रेंट। 2 क्वाड्रेंट, बस बहुत इजी है, बोर तो नहीं हो रहे हो कि इतने इजी इजी क्वेश्चन है। फिर ड्यूअल कन्वर्टर क्या होता है, सिंगल टू 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट। देखो तो अब ये मतलब अब आगे आगे जब आपको एक बार दिमाग में बैठेगा तो फिर कैसे और क्यों, और वेवफॉर्म तो मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगी कि आप कोई से भी किसी की भी वेवफॉर्म बना पाओगे, उसका कॉन्सेप्ट बस आपको आ जाएगा, है ना। फिर ड्यूअल कन्वर्टर हैज
2 back-to-back fully controlled converters, 2 back-to-back semi-controlled converters. ड्यूअल कन्वर्टर का मतलब होता है कि लोड के अक्रॉस वोल्टेज भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सके और करंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सके. करंट का भी डायरेक्शन चेंज हो, ऐसा चल रहा है तो ऐसा डायरेक्शन हो जाए, ठीक है, और वोल्टेज भी लोड के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाए. इसलिए इस साइड पे एक कन्वर्टर लगता है, दूसरे साइड पे दूसरा कन्वर्टर और बीच में लोड, और ये कन्वर्टर उल्टे होते हैं. तो एक कन्वर्टर इस डायरेक्शन में करंट देता है, एक इस डायरेक्शन में करंट देता है ना, और वोल्टेज भी दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. अब बताओ इन तीनों आंसर्स में से कौन सा सही हो सकता है? फर्स्ट. फर्स्ट, वेरी गुड. सेमी की तो बात ही नहीं है. जब भी कोई रिवर्सल सेमी कन्वर्टर, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज, एक ही डायरेक्शन में करंट, एक ही डायरेक्शन में टॉर्क, एक ही डायरेक्शन में स्पीड, उसमें कभी डायरेक्शन चेंज ही नहीं होगा. सेमी इसलिए वहां यूज होता है जहां कहीं कोई चेंज नहीं करना है. अगर चेंज नहीं करना है तो सेमी बेटर है, क्योंकि सेमी जो है उसमें 2 डायोड होते हैं तो कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है, और सेमी कन्वर्टर का पावर फैक्टर भी बेटर होता है क्योंकि उसमें नेगेटिव पार्ट नहीं आता है. आपने देखा था ना, उसमें फ्लाईव्हील डायोड की कॉस्ट भी बच जाती है, फ्लाईव्हील की जरूरत ही नहीं है. डायोड के कारण जैसे ही डायोड रिवर्स बायस होता है ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री पे पाई पे, तो अपने आप ही करंट वो फ्लो होना, सब करंट भी बंद हो जाता है. वोल्टेज करंट तो फ्लाईव्हील डायोड के थ्रू फ्लो हो सकता है, पर वोल्टेज तो जीरो हो जाता है इमीडिएटली. तो वोल्टेज जीरो हो जाता है उसमें, तो जब वोल्टेज जीरो हो गया तो नेगेटिव कहाँ से होगा, है ना. तो करंट फ्लो हो सकता है अगर आपने फ्लाईव्हील डायोड अलग से एक लगा रखा है तो किसी केस में. वो अपन ने कल देखा ही था. स्पीड कंट्रोल ऑफ ए मोटर ड्राइव बिलो द बेस स्पीड इज पॉसिबल इन कांस्टेंट टॉर्क मोड. ये फिर से अपन पिछले क्लास का. स्पीड कंट्रोल ऑफ ए मोटर बिलो द बेस स्पीड इज पॉसिबल इन कांस्टेंट टॉर्क मोड. सही है कि गलत है? ट्रू है. अभी तो अपन वही है ना. और कांस्टेंट पावर मोड में जब ड्राइव ऑपरेट करती है तो कांस्टेंट पावर मोड अबव बेस स्पीड मिलती है. ठीक है. तो अब ठीक है, अब आप लोगों को कुछ और पूछना हो या कुछ हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ये अपनी एक एडिशनल क्लास है. क्लास के टाइम पे एकदम क्लास जल्दी से बंद भी हो गई थी, तो वो कुछ जो पोर्शन छूटा है वो तो मैं पिछला आपका ले लूंगी. कोई और डाउट्स है आपके मन में तो आप लोग पूछ लो, है ना, या फिर लिख के रख लो, तो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे. आप लोग नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, और आपका कल आप लोग का क्विज भी है. और ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनीथिंग? नहीं, ठीक है देन. ओके देन, बाय बाय. बाय बाय, गुड डे. ओके, बाय बाय.